السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد۔ میں ہوں نازیہ خان۔ کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شفیق خان۔ موسم کی خبروں کے لیے میں آپ کا ساتھ دوں گا قاسم علی۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے ہیڈ لائن سے۔ چینی بھائیوں کا تحفظ اولین ترجیح، وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت چینی باشندوں کی سیکیورٹی کے حوالے سے جائزہ اجلاس۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری انتہائی اہم مشترکہ منصوبہ ہے۔ سی پیک کے تناظر میں چینی باشندوں کا تحفظ مزید اہمیت کا حامل ہو چکا۔ پاکستانی معیشت میں چینی کمپنیز کا اعتماد معاشی مستقبل کے لیے انتہائی اہم ہے، وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا اسلام آباد میں پولیس اسٹیشن آن ویلز منصوبے کا افتتاح، سیف سٹی کیپٹل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کا بھی دورہ۔ وزیر اعظم کو سیف سٹی پر بریفنگ، پولیس اسٹیشن آن ویلز سے 60 سال سے زائد عمر کے افراد کو ڈرائیونگ لائسنس کے اجرا، ایف آئی آر کے اندراج سمیت مختلف سہولتیں ملیں گی۔ وزیر اعظم کا پولیس آپریشن سینٹر، آن لائن ویمن پولیس اسٹیشن، ٹیکسی ویریفیکیشن سسٹم کا دورہ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی سیف سٹی میں کام کرنے والے اہلکاروں سے گفتگو، لگن اور عزم کی تعریف، خصوصی مقدمات پر کام کرنے والے باصلاحیت جوانوں کو لیپ ٹاپس دیے۔ عوام کے جان و مال کا تحفظ پولیس کا نصب العین۔ پولیس کا مقصد اشرافیہ کی حفاظت نہیں، دہشت گرد اور سماج دشمن عناصر کا قلع کمہ کرنا ہے۔ میرٹ پر عمل درآمد شاندار معاشرے کے قیام کے لیے باوقار معیار ہے۔ نیشنل پولیس اکیڈمی میں معیاری تربیت اور رہائش کی بہترین سہولتیں فراہم کرنے کے لیے بھرپور تعاون کریں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا نیشنل پولیس اکیڈمی میں زیر تربیت پولیس افسروں سے خطاب۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کی صدارت میں سلامتی کونسل میں عالمی امن سے متعلق مباحثہ، تنازعات کے پرامن حل کے طریقہ کار کو مؤثر بنانے سے متعلق قرارداد منظور۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے قرارداد پیش کی۔ عالمی امن کے لیے پاکستان کی کوششیں قابل تعریف ہیں، سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتیرس۔ مسئلہ کشمیر سلامتی کونسل کے ایجنڈے کا دیرینہ حل طلب معاملہ ہے۔ بھارت نے پانی کو پاکستان کے خلاف بطور ہتھیار استعمال کیا۔ تنازعات کا پرامن حل پائیدار عالمی امن کی ضمانت ہے، نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار۔ اسلام آباد راولپنڈی میں وقفے سے بارش، ندی نالوں میں طغیانی، نشیبی علاقے زیر آب، پانی گھروں میں بھی داخل ہو گیا۔ اسلام آباد کی نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں کار سیلابی ریلے میں بہہ گئی، باپ اور بیٹی سوار تھے۔ تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری۔ راول ڈیم میں پانی کی سطح 1750 فٹ ہونے پر مسلسل تیسرے روز بھی سپل ویز کھولے گئے۔ آئندہ 12 گھنٹے میں راولپنڈی اسلام آباد میں موسلادھار بارش کی پیش گوئی، عوام کو احتیاط برتنے کی ہدایت۔ خیبر پختونخوا میں موسلادھار بارشوں، ندی نالوں میں طغیانی اور لینڈ سلائیڈنگ سے جانی اور مالی نقصانات۔ مختلف حادثات میں 10 افراد جاں بحق، 2 زخمی، 10 گھروں کو نقصان پہنچا۔ سوات میں موسلادھار بارش سے ندی نالے بپھر گئے۔ معلم جبہ کے علاقے سوڈھے رئی میں 2 بچے سیلابی ریلے میں بہہ گئے، ایک کی لاش نکال لی گئی۔ خوازہ خیلہ اور دیگر علاقوں کے ندی نالوں میں طغیانی، مانسیرہ میں وادی کونش، سرن اور کاغان میں ندی نالے ابل پڑے۔ چترال، دیر، سوات، کوہستان، بٹگرام، مانسہرہ، ایبٹ آباد، بنیر، شانگلہ، مالکنڈ، پشاور، ڈیرہ اسماعیل خان سمیت بالائی اضلاع میں مزید موسلادھار بارش کی توقع، ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا بارشوں اور سیلاب سے جانی اور مالی نقصانات پر اظہار افسوس، متاثرہ خاندانوں سے اظہار ہمدردی۔ حادثات میں زخمی افراد کو فوری طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت۔ متعلقہ ادارے متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں تیز کریں، کسی بھی ممکنہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام تیاریاں مکمل رکھی جائیں، متعلقہ حکام کو ہدایت۔ گلگت بلتستان میں مسلسل موسلادھار بارشیں اور کلاؤڈ برسٹ۔ بابوسر شاہراہ پر 7 سے 8 کلومیٹر کا علاقہ شدید متاثر۔ پاک فوج کا ریسکیو اور بحالی آپریشن، متاثرین کو ہیلی کاپٹرز کے ذریعے محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ متاثرہ افراد کو اشیاء خوردونوش، زخمیوں کو طبی امداد کی فراہمی۔
मुश्किल पहाड़ी इलाकों में लापता अफराद की तलाश जारी। पाक फौज का देओसाई में भी रेस्क्यू ऑपरेशन। स्कर्दू से सतपारा मॉनिटरिंग स्कूल तक लैंडस्लाइड का इलाका क्लियर। देओसाई से सतपारा गांव जाने वाला रास्ता भी बहाल। शाहराह कुराकरम पर तलेची से चलास तक सड़क साफ। जंगलोट स्कर्दू रोड पर ट्रैफिक बहाल। आजाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में मानसून की मूसलाधार बारिश, नदी नालों में तुग़यानी और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग। निज़ाम जिंदगी मुतासिर। वादी नीलम के इलाके जनावाई में क्लाउड बर्स्ट, जनावाई नाला बिफर गया। 7 दुकानें मुकम्मल तबाह, 2 को जुज़वी नुकसान। 2 पनचक्कियां भी सैलाबी रैली की नजर। मुनशियात से पाक पंजाब के ख्वाब की ताबीर। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इंसदाद मुनशियात फोर्स पंजाब कायम कर दी। मुनशियात फरोशों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का ऐलान। मुनशियात फरोशों के लिए पंजाब में कोई जगह नहीं। आइंदा नस्लों के महफूज मुस्तकबिल के लिए मुनशियात का खात्मा जरूरी है। वजीर आला मरियम नवाज। 9 मई को तोड़फोड़, अमलाक को आग लगाने और हंगामा आराई के मुकदमा। सरगोदा की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने PTI के 39 कारकुनों को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भुच्चर, तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असेंबली मोहम्मद अहमद चट्ठा और साबिक MNA बिलाल एजाज भी शामिल। फैसला आइन और कानून के मुताबिक है, इंसाफ का बोलबाला हुआ। वज़ीर ममलिकत बैरिस्टर अकील मलिक। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने 9 मई मुकदमे का फैसला महफूज कर लिया। 61 गवाहों के बयानात कलमबंद। शाह महमूद कुरैशी समेत तहरीक इंसाफ के 14 रहनुमा और कारकुन मुकदमे में नामजद। समात कोट लखपत जेल में हुई। सिक्योरिटी फोर्सेस का कल्लात में फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। मजीद 4 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। 19 जुलाई से जारी ऑपरेशन में अब तक भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाले 8 दहशतगर्द मारे जा चुके। हलाक खारजियों के ठिकाने से भारी मिकदार में असला और गोला बारूद बरामद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली जरदारी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी का रुझान जारी। 100 इंडेक्स में 1202 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह 1,39,419 पर बंद। 34 अरब 68 करोड़ रुपए से जायद मालियत के शेयर्स का कारोबार। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी की सदारत में अदालती इस्लाहात से मुतालिक इजलास। मुकदमात की दर्जाबंदी और दस्तावेजात की स्कैनिंग में ताखीर पर तशवीश का इजहार। 89 इस्लाहात इकदामात में से 26 मुकम्मल, 44 पर काम जारी, 14 जल्द शुरू किए जाएंगे। इस्लाहात से ज़ेर इल्तवा मुकदमात में नुमाया कमी आई। एलामिया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी में इजाफा। बीजेपी आबादी का तनासुब तब्दील करने के मजमूम एजेंडे पर अमल पैरा। घरों पर छापे और बड़े पैमाने पर मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयां। कश्मीरी आवाम खौफ और दहशत के माहौल में जिंदगी बसर करने पर मजबूर। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की भारतीय जुल्म और जबर की शदीद मजम्मत। मोदी सरकार की चौथी बड़ी मईशत के झूठे दावे बेनकाब। मोदी राज में गुर्बत, महंगाई और पसमानदगी भारतीय अवाम का मुकद्दर। भारत में भूख और कर्ज से अवाम खुदकुशी करने पर मजबूर। भारत में 3 साल में खुदकुशी के 1866 वाकयात। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट। फैशिस्ट मोदी के भारत में फस्तायत उरूज पर। फौजी एहलकार भी हिंदुत्वा गुंडों से महफूज न रहे। उत्तर प्रदेश में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के एहलकार पर हिंदुत्वा गुंडों का बहीमाना तशद्दुद। हिंदुत्वा दहशतगर्दों को खुली छूट और रियासती तहफ्फुज हासिल। हिंदुत्वा दहशतगर्द आजाद। गजा में सेहूनी हमलों में मजीद 51 फलस्तीनी शहीद। शोहदा में खुराक के मुंतजर 14 फलस्तीनी भी शामिल। इसराइल ने दीर उल बलाह में जमीनी कार्रवाई शुरू कर दी। मुतादिद इमारतों और अस्पतालों पर गोलाबारी, 12 अफराद शहीद। सेहूनी हमलों में शोहदा की मजमूई तादाद 59,000 से तजावुज कर गई।
قحط کی صورتحال انتہائی سنگین، فاقہ کشی اور بھوک کے باعث 3 دنوں میں 21 بچے شہید۔ اقوام متحدہ اور طبی اداروں نے غزہ میں ہولناک قحط کی صورتحال کو تباہ کن قرار دے دیا۔ Innovation, trouble and gone. The connection was sweet. This time it goes down. بنگلہ دیش نے پاکستان کے خلاف T20 سیریز جیت لی۔ ڈھاکہ میں دوسرے T20 میچ میں بنگلہ دیش کی 8 رن سے کامیابی، سیریز میں 2-0 کی فیصلہ کن برتری۔ میزبان ٹیم کے 133 رنز کے جواب میں گرین شرٹس 125 رنز پر آؤٹ۔ شریف السلام کی 3 وکٹیں۔ تیسرا میچ جمعرات کو ڈھاکہ میں شیڈیول، سیریز پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست۔ ڈھاکہ میں فضائی حادثے کا باعث بنگلہ دیش میں یوم سوگ۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان دوسرے T20 کے موقع پر اسٹیڈیم میں بنگلہ دیشی پرچم سرنے کو۔ حادثے کے متاثرین کے لیے دعائیں۔ میچ سے قبل 1 منٹ کی خاموشی، کھلاڑیوں اور ٹیم آفیشلز کی سیاہ پٹیاں باندھ کر میچ میں شرکت۔ اور بحرین میں سنوکر چیمپئن شپ انڈر 21 میں پاکستان کے حسنین اختر نے براہ راست پری کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی۔ احسن رمضان بھارتی کویسٹ کو شکست دے کر لاسٹ 30 راؤنڈ میں پہنچ گئے۔ 6 ریڈ سنوکر میں محمد آصف، شاہد آفتاب اور احسن رمضان نے ناک آؤٹ راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، خبروں کی تفصیل بھی شیئر کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ وزیر اعظم کا اسپیشل انیشیٹو، نیوٹیک اور ایسوسی ایشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے باہمی اشتراک سے انڈسٹری کے ہمراہ ہنر سے روزگار کا سفر۔ پرائم منسٹرز یوتھ پروگرام اور SIFC کی مشاورت سے نیوٹیک پیش کر رہا ہے قومی اور بین الاقوامی سطح پر ہائی ڈیمانڈ سکلز میں مفت فنی تربیت۔ بلڈنگ الیکٹریشین لیول 2، پلمبر پائپ فٹر لیول 2، آٹو کیڈ، BIM اور ریوٹ میں 3 سے 6 ماہ کے مفت کورسز۔ ملک میں اور بیرون ملک یقینی روزگار کے مواقع۔ آن لائن درخواست جمع کرانے کی آخری تاریخ 10 اگست 2025۔ کلاسز کا آغاز 18 اگست سے۔ آن لائن درخواست دینے کے لیے اس لنک پر جائیں یا QR کوڈ سکین کریں۔ ہنرمند نوجوان، روشن پاکستان۔ درست، ہر وقت، بر وقت۔ ناظرین، وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ چین کے ساتھ برادرانہ تاریخی تعلقات ہیں۔ چینی بھائیوں کا تحفظ حکومت پاکستان کی اولین ترجیح ہے۔ اسلام آباد سمیت پورے ملک میں چینی باشندوں کی سیکیورٹی کو مؤثر بنانے کے لیے متعدد اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ چینی باشندوں کی سیکیورٹی کے انتظامات کے حوالے سے جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری انتہائی اہم مشترکہ منصوبہ ہے جو دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے، جس میں دونوں ملکوں کے مابین بزنس ٹو بزنس طرز پر معاملات طے کیے جائیں گے۔ اس تناظر میں پاکستان میں چینی باشندوں کا تحفظ اہمیت کا حامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ چینی برادری کے لیے ایک محفوظ اور کاروبار دوست ماحول کی فراہمی یقینی بنا رہے ہیں۔ ملک بھر میں عالمی معیار کے سیف سٹی منصوبے پر کام جاری ہے جس سے سیکیورٹی بہتر ہوگی۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ ملک میں ہوائی اڈوں پر چینی باشندوں کی آمد و رفت کی سہولت کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کیے جائیں۔ اجلاس میں وزیر داخلہ نے وزیر اعظم کو پورے ملک میں سیکیورٹی انتظامات کے حوالے سے آگاہ کیا گیا۔ وزیر اعظم کو آگاہ کیا گیا کہ پورے ملک میں چینی باشندوں کے لیے خصوصی سیکیورٹی انتظامات کیے گئے ہیں۔ اجلاس میں وزیر اطلاعات و نشریات عطاء اللہ تارڑ، وزیر مملکت طلال چودھری، وزیر اعظم کے معاون خصوصی طارق فاطمی اور دیگر اعلیٰ حکام شریک تھے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اسلام آباد میں پولیس اسٹیشن آن ویلز منصوبے کا افتتاح کر دیا۔ تفصیل شاہ رخ شفیع سے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اسلام آباد سیف سٹی کیپٹل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کا دورہ کیا۔ وزیر اعظم نے سیف سٹی کے منصوبے پولیس اسٹیشن آن ویلز کا افتتاح کیا۔ IG اسلام آباد پولیس سید علی ناصر رضوی نے وزیر اعظم کو منصوبے کے بارے میں بریفنگ دی۔ اس وقت جو کیمرے ہمارے چل رہے ہیں وہ 3257 ہیں سر۔ ٹریفک مینجمنٹ
फेस्टिविटी कवरेज, मुहर्रम कवरेज, वो सारी इन कैमरों से करा रहे हैं। यहाँ AI बेस सर, फेशियल रिकग्निशन, ANPR सर, ये हमने सिर्फ 100 कैमराज ऐड किए हैं। नया प्रोजेक्ट है, उसमें तो हमारे 3300 कैमराज होंगे सर AI इनेबल, और पूरे का पूरा 97% ऑफ इस्लामाबाद सर कवर होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने सेफ सिटी के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स का दौरा किया। उन्होंने पुलिस ऑपरेशन सेंटर, विमेन पुलिस स्टेशन और टैक्सी वेरिफिकेशन सिस्टम और दूसरे शोबों में तैनात एहलकारों से गुफ्तगू की और उनकी लगन को सराहा। लोग इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि अगर वालिद 15 बना है तो उसकी आप लोग क्या काम कर रहे हैं यहाँ पर, तो हम उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। जी जी सर। वेरी गुड। टैक्सी वेरिफिकेशन, पैसेंजर और टैक्सी ड्राइवर दोनों की सेफ्टी के लिए सिस्टम बनाया गया है। तमाम डाटा हमने अपने पास सेव रखा है। टैक्सी लेने से पहले आपसे पूछते हैं? बिल्कुल सर, हमने QR कोड एक स्कैन किए, उसमें फिर आप आगे उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग में बताया गया मुअस्सर निगरानी के लिए मसनूई ज़हानत और जदीद टेक्नोलॉजी को बरोए-कार लाया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने दौरे के मौके पर खुसूसी मुकदमात पर काम करने वाले सेफ सिटी के बासलाहियत जवानों में लैपटॉप भी तकसीम किए। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने नेशनल पुलिस अकेडमी इस्लामाबाद में ज़ेर तरबियत अफसरान से खिताब करते हुए कहा है कि पुलिस फोर्स को जदीद खतूत पर उस्तवार करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। रिपोर्ट कर रही हैं मरियम मलिक। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पुलिस फोर्स के ज़ेर तरबियत अफसरान से खिताब करते हुए कहा कि कारकर्दगी में इजाफे के लिए तरबियत अहमियत की हामिल है। अमन व अमान बरकरार रखने और दीगर जिम्मेदारियों की अदायगी के लिए पुलिस फोर्स को जदीद टेक्नोलॉजी से लेस करने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए जान का नजराना पेश करने वाले हमारा फख्र है। पुलिस अकेडमी हर हवाले से पिवट है, क्योंकि आपने फील्ड में जाके आम आदमी को इंसाफ देना है, उसकी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करना है और शहरों में देहातों में अमन कायम करना है। सैलाबी रेलों में कई पुलिस जवानों ने अपना शहादत का जाम नोश किया। इससे बड़ी कुर्बानी और कोई हो नहीं सकती। मुल्क में दोबारा जो दहशतगर्दी ने असर उठाया है, उसका कला कमा करने के लिए पुलिस फोर्स के साथ हमारी बहादुर अफवाज पाकिस्तान, हमारे लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज दहशतगर्दों का हर रोज मुकाबला कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने ज़ेरे तरबियत अफसरान को बेहतरीन ट्रेनिंग और सहूलतों की फराहमी के लिए मुख्तलिफ इक़दामात का ऐलान किया। इस अकेडमी को पूरी तरह रेनोवेट करना है। बावकार तरीके से पुलिस ऑफिसर्स को उनकी रहायश का इंतजाम होगा। मास्टर्स की डिग्री दी जाया करेगी। 25 एकड़ पर मुहित यहाँ पर एक नेशनल पुलिस अकेडमी, उसका क़याम अमल में लाया जा रहा है। एलीट ट्रेनिंग स्कूल का क़याम अमल में लाया जा रहा है। फायरिंग रेंज बनाई जाएगी और जो हमारा दोस्त मुल्क है चीन, वहाँ पर आपको 1 महीने की बैचेस में ट्रेनिंग करवाई जाएगी और ट्रेनी ASPs के लिए नया हॉस्टल बनाया जाएगा। ये वो माहौल है जो कि किसी भी तरबियत गाह में होना इंतहाई ज़रूरी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नेशनल पुलिस अकेडमी को जदीद खतूत पर इस्तवार करने के लिए इक़दामात के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि तरबियती मयार को बेहतर बनाते हुए साइबर क्राइम और दीगर शोबों में भी कोर्सेज शुरू किए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस मौके पर ज़ेर तरबियत पुलिस अफसरान में लैपटॉप तकसीम किए। वज़ीर-ए-आज़म ने नेशनल पुलिस अकेडमी में ज़ेर तरबियत पुलिस अफसरों को सहूलतों की फराहमी और तरबियती मयार में इजाफे के लिए फायरिंग रेंज और हॉस्टल की तामीर के 2 मनसूबों का भी संग बुनियाद रखा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वज़ीर-ए-आज़म को मनसूबों के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। मरियम मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुल्क में होने वाली बारिशों और सैलाबी सूरत हाल से होने वाले जानी और माली नुकसानात पर अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने सैलाब और मुख्तलिफ हादसात में जाँ बहक होने वालों के बुलंदी दराजात की दुआ की और उनके अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने इस्लामाबाद की हाउसिंग सोसाइटी में बाप और बेटी की गाड़ी समेत सैलाबी पानी में बह जाने के वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि बाप और बेटी के रेस्क्यू के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएँ। उन्होंने ये भी हिदायत की कि दीगर हादसात में ज़ख्मी होने वालों को फौरी तिब्बी इमदाद, मुतासरीन तक फौरी रिलीफ और मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज़ तर किए जाएँ। उन्होंने NDMA को सूबों और मुतल्लिका महकमों से मुसलसल राबते में रहने और उन्हें तमाम तर ज़रूरी सहूलियात फराहम करने की भी हिदायत की। वज़ीर-ए-आज़म ने किसी भी मुमकिन सूरत हाल से निमटने के लिए तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल रखने और नेशनल हाईवे अथॉरिटी FWO को सैलाब से मुतासरा शाहराहों और राबता सड़कों की बहाली का काम तेज़ करने की भी हिदायत की है।
सदर आसिफ अली जरदारी ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों और सैलाब से कीमती जानों के नुकसान पर गहरे रंज और गम का इजहार किया है। उन्होंने जाँ बहक अफराद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ और मुतासरा खानदानों से दिली हमदर्दी का इजहार किया। सदर ममलिकत ने कहा कि मुतालिका इदारे मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ तेज करें और मुतासरीन को हर मुमकिन इमदाद फराहम करें। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में पाकिस्तान की सदारत में आलमी अमन और सलामती के फ़रोग़ के लिए तनाज़ात के पुरअमन हल के हवाले से मुज़ाकरे का इनेकाद हुआ। तफसील शेयर कर रही हैं नम्रा सुहेल। अक़वाम मुत्तहिदा का मुतहरिक रुकन होने के नाते पाकिस्तान आलमी अमन के क़याम और फ़रोग़ के लिए अपना किरदार अदा कर रहा है। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इस्हाक़ डार की सदारत में कसीरुल जहदी और तनाज़ात के पुरअमन हल के साथ आलमी सलामती और अमन के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में मुज़ाकरे के दौरान पाकिस्तान की जानिब से पेश की जाने वाली करारदाद तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए तरीक़ा कार को मुस्तहकम करने के लिए अहम है। मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर की जाने वाली करारदाद पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में अहम संग मील है। मुज़ाकरे से खिताब में नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इस्हाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर पर अमल दरामद के लिए पुरअज़्म है। Pakistan is striving to fulfill the solemn responsibility of Security Council's presidency with a deep sense of purpose, humility and conviction. Our approach will continue to remain anchored in the purposes and principles of the UN Charter, respect for international law and a steadfast commitment to multilateralism. I am extremely pleased with the adoption of the Resolution 2788 on strengthening mechanism for peaceful settlement of disputes. मोहम्मद इस्हाक़ डार ने कहा कि मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती पुरअमन हल के लिए पुरुमीद हैं। उन्होंने कहा कि मसला कश्मीर सलामती काउंसिल के एजेंडे का दरीना हल तलब मामला है। The prolonged suffering of the Palestinian people, particularly in Gaza, remains a stark reminder of the urgent need for a just and lasting solution. We reiterate the call for an immediate, unconditional and permanent ceasefire in Gaza and across the occupied territory. Jammu and Kashmir remains one of the oldest disputes on the agenda of the UN Security Council. It is an internationally recognized disputed territory, the final disposition of which is to be made in accordance with the relevant UN Security Council resolutions. पाक भारत कशीदगी की बात करते हुए नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इस्हाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा तनाज़ात की बजाय सफारतकारी को तरजीह दी है। उन्होंने कहा कि भारत ने पानी को पाकिस्तान के खिलाफ बतौर हथियार इस्तेमाल किया है। नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि पानी 24 करोड़ पाकिस्तानियों की लाइफलाइन है। तनाज़ात का पुरअमन हल पायदार आलमी अमन की जमानत है। मुज़ाकरे से खिताब करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने कहा कि करारदाद के हवाले से पाकिस्तान का किरदार काबिल सताइश है। I commend Pakistan for utilizing its presidency to put forward the resolution urging all member states to make full use of these tools in our collective pursuit of global peace. मुज़ाकरे से खिताब में बरतानिया, यूनान समेत दीगर ममालिक के मंदूबीन ने आलमी अमन और सलामती के तनाज़ात के पुरअमन हल पर जोर दिया। मुज़ाकरे के दौरान वज़ारती सतह पर कई बयानात दिए जाएंगे। नम्रा सुहेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। मनशियात से पाक पंजाब के ख्वाब की अब होगी ताबीर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने सूबे में इंसदाद मनशियात फोर्स कायम कर दी है। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि मनशियात फरोशों के लिए पंजाब में कोई जगह नहीं। तफसील बता रही हैं शुमाइला शब्बीर। इंसदाद मंशियात फोर्स की तकरीब से खिताब करते हुए पंजाब की वजीर आला मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि आइंदा नस्लों के महफूज मुस्तकबिल के लिए मंशियात का खात्मा जरूरी है। खुसूसन तालीमी इदारों से मंशियात की लानत का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। मंशियात फरोशों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि माशरे के ऐसे नासूरों के लिए पंजाब में कोई जगह नहीं। जो मैं बॉडी लैंग्वेज देख रही हूँ, जो सिलेक्शन ऑफ पर्सनल में देख रही हूँ, तो मुझे यकीन हो गया है कि इंशाअल्लाह ताला मंशियात जैसी लानत का पंजाब से इंशाअल्लाह बहुत जल्द खात्मा होगा। ये जो वर्दी आपने माशाअल्लाह पहनी हुई है, ये सिर्फ वर्दी नहीं है, ये वो अज़्म है जो आज आप करके यहाँ से निकलोगे कि हर यूनिवर्सिटी से, हर कॉलेज से, हर स्कूल से इस लानत का, इस बीमारी का खात्मा करोगे इंशाअल्लाह ताला। वजीर आला मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि कलील मुद्दत में मजबूत इंसदाद मंशियात फोर्स का कयाम अमल में लाया गया है और इसे पंजाब के तमाम डिवीजन्स में फाल बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पुलिस में क्राइम्स कंट्रोल डिपार्टमेंट कायम किया गया है, जिससे जराइम की शरह में नुमाया कमी हुई है। इंसदाद तजावुजात फोर्स भी जल्द पंजाब में अपना काम शुरू कर देगी। मैं जवानों को ये कहना चाहती हूँ
कि आप सिर्फ मंशियात फरोशों के खिलाफ एक्शन नहीं करोगे, बल्कि आप चुन चुन के पंजाब की रगों से, पंजाब के शहरों से, पंजाब के डिवीजन से, पंजाब की गलियों से, पंजाब के मोहल्लों से इस कौम की रगों में जो जहर भरने की कोशिश की जा रही है, आप वो जहर निकालोगे इंशाअल्लाह ताला। वजीर आला मरियम नवाज ने इंसदाद मंशियात फोर्स के अहलकार को फ्लैग सौंपा और परेड का मुआयना किया। इस मौके पर इंसदाद मंशियात फोर्स के जवानों से हल्फ लिया गया। वजीर आला मरियम नवाज ने आला कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले अफसरों और जवानों को एजाजात दिए। शुमाइला शब्बीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालतें तोड़ फोड़ और हंगामा आराई के मुकदमे में मुलव्विस 39 मुल्जिमान को 10-10 साल कैद की सजा सुनाती है। सजा पाने वालों में पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भुच्चर, तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असेंबली मोहम्मद अहमद चट्ठा और साबिक MNA बिलाल एजाज भी शामिल हैं। मुजरिमान के खिलाफ 9 मई 2023 को तोड़ फोड़, जलाओ घेराव और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने पर इंसदाद दहशतगर्दी की दफात के तहत थाना मूसाखेल में मुकदमा दर्ज था। मुकदमे की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में तकरीबन 2.5 साल तक जारी रही। मुकदमे में 80 से ज़ायद मुल्जिमान को नामजद किया गया था। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भुच्चर ने अपने बयान में कहा है कि वो तहरीरी फैसले मिलने के बाद लाहौर हाई कोर्ट में अपील करेंगे। उधर लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने 9 मई 2023 को जलाओ घेराव और इश्तियाल अंगेज तकारीर के मुकदमे में फैसला महफूज कर लिया है। मुकदमे में शाह महमूद कुरैशी समेत तहरीक इंसाफ के 14 रहनुमा और कारकुन नामजद हैं। मुकदमे की समाअत लाहौर की कोट लखपत जेल में हुई। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत के जज मंजर अली गुल ने मुल्जिमान के वकला की जानिब से दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया। मुल्जिमान के खिलाफ लाहौर के शेरबा पुल पर इश्तियाल अंगेज तकारीर करने, तोड़ फोड़, जलाओ घिराव और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने पर इंसदाद दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा चलाया गया। समाअत के दौरान प्रोसिक्यूशन की जानिब से 61 गवाहान की शहादत कलमबंद की गई। कानून और इंसाफ के वज़ीर ममलिकत बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा है कि 9 मई मुकदमात पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोदा के फैसले का खैर मकतब करते हैं। अदालत के फैसले से इंसाफ का बोलबाला हुआ है। तफसील बता रही हैं सदफ अफजल। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान कानून और इंसाफ के वज़ीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि मखसूस सियासी जमात ने 9 मई को कानून हाथ में लिया और फसाद बर्पा किया। उन्होंने कहा कि मुल्जिमान इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सके। JHQ के ऊपर हमला किया, जिना हाउस के ऊपर जिस तरह ये हमला आवर हुए, मियाँ वाली का पुलिस स्टेशन हो या एयरबेस हो या जो दीगर हसास मकामात थे या जो ऑफिशियल मकामात थे जहाँ पे एक केयरफुल प्लानिंग के साथ ये तमाम तर मामला किया गया और इसको कैरी आउट किया गया। 9 मई का शर्मनाक वकुआ रियासत से दुश्मनी का मुंह बोलता सबूत है। बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि ट्रायल में इंसाफ के तकाजे पूरे किए गए हैं। कानून सबके लिए बराबर है, ओहदा मानी नहीं रखता। 9 मई के जो केसेस हैं वो बिल्कुल ओपन एंड शट केसेस हैं। आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत जो सरगोदा की है उन्होंने फैसला दिया, फाजिल जज साहब ने। ये एक फेयर वार्निंग भी है उन लोगों के लिए या उन पार्टी के सपोर्टर्स के लिए जिनकी लीडरशिप उनको वरगलाती है, जिनको बतौर ईंधन इस्तेमाल करती है, जो एहतजाज का लिबादा उड़े हुए इंतशार की कॉल दी जाती है। ये उनको भी इंतबाह किया जाता है कि आप खुदारा किसी ऐसे घिनौने प्लान में या उसका हिस्सा मत बने या उसमें अपना हिस्सा मत डालें। वज़ीर मुमलिकत ने कहा कि रियासत की रिट को चैलेंज करेंगे तो कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। मुल्क में आइन और कानून के मुताबिक ही फैसले होने हैं। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान के जिला कलात में फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की मौजूदगी की मुसद्दिका खुफिया इत्तला पर जारी ऑपरेशन में मजीद 4 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए हैं। 19 जुलाई से जारी इस ऑपरेशन में अब तक मारे जाने वाले दहशतगर्दों की तादाद 8 हो गई है। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों का ठिकाना तबाह करके वहां से भारी मिकदार में असला और गोला बारूद कब्जे में ले लिया है। सिक्योरिटी फोर्सेस कौम की हिमायत से बलूचिस्तान के अमन और इस्तेहकाम को सबूताज करने की भारतीय प्रॉक्सीज की साजिशों को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म हैं।
صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کلات میں سیکورٹی آپریشن میں دہشت گردوں کو ہلاک کرنے پر سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اور سیکورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کے مکمل سدباب کے لیے پرعزم ہیں، معصوم شہریوں کی جان و مال کو نقصان پہنچانے والے دہشت گردوں کے مذموم عزائم کو خاک میں ملا کر رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ سیکورٹی فورسز نے جرات اور پیشہ ورانہ مہارت سے ملک دشمن عناصر کو کیفر کردار تک پہنچایا۔ آج پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی دیکھنے میں آئی ہے اور 100 انڈیکس 1202 پوائنٹس کے اضافے کے بعد تاریخ کی بلند ترین سطح 1,39,419 پر بند ہوا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں ضمیر عباس۔ حکومت نے زر مبادلہ کے ذخائر کو مستحکم کرنے کے لیے ترسیلات زر اور ایکسپورٹس کے فروغ پر خصوصی توجہ دی۔ گزشتہ مالی سال میں ترسیلات زر کی مد میں حکومت نے تاریخ میں پہلی مرتبہ 38 ارب ڈالر کا ہدف کامیابی سے حاصل کر لیا، جبکہ حکومتی اقدامات کی بدولت گزشتہ مالی سال میں آئی ٹی کی ایکسپورٹس میں 26%، سی فوڈ کی ایکسپورٹس میں 13%، جبکہ ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس میں 7% اضافہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ مہنگائی کی شرح میں نمایاں کمی کے بعد اسٹیٹ بینک کی جانب سے آنے والی زرعی پالیسی میں انٹرسٹ ریٹ میں مزید کمی متوقع ہے، جس کی وجہ سے اسٹاک مارکیٹ میں آج تیزی دیکھنے میں آئی۔ مارکیٹ میں جو اس وقت سینٹیمنٹس بنے ہوئے ہیں وہ انٹرنیشنل نیوز فلو جو اسپیشلی پاکستان اور یو ایس اور پاکستان اور یورپ کو لے کے جو ہے اس کی ریفلیکشن ہے۔ اچھا، پھر ہم نے پچھلے دنوں دیکھا کہ 11 سال میں پہلی بار کرنٹ اکاؤنٹ ہمارا سرپلس رہا۔ یہ وہ ایفرٹس ہیں گورنمنٹ کی طرف سے جس کی ریفلیکشن اسٹاک مارکیٹ پہ نظر آ رہی ہے۔ ایک کانفیڈنس بلڈنگ میجر کے طور پہ اگر آپ ان چیزوں کو لیں تو آپ کو وہی چیز اسٹاک مارکیٹ پہ اس وقت ریفلیکٹ ہو رہی ہے کہ انویسٹر کا ایک کانفیڈنس ہے کہ ہم کن برے حالات سے اٹھ کے آج اس پوزیشن پہ ہیں کہ ماشاءاللہ ہماری فورن پالیسی بھی جو ہے وہ ایک کامیابی کی طرف جاری ہے اور ہماری جو فائنینشیل پالیسیز ہیں لوکل وہ بھی ایک اچھے ٹریک پہ چل رہی ہیں۔ ملک میں میکرو اکنامک اسٹیبلٹی اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے بعد پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں تیزی کا سفر جاری ہے۔ پچھلے 3 ہفتوں میں مارکیٹ اراؤنڈ 20,000 سے زائد پوائنٹ کا اضافہ کر چکی ہے۔ ریزلٹ سیزن کے حوالے سے سرمایہ کار کافی زیادہ پازیٹیو اپروچ رکھے ہوئے ہیں، خاص طور پہ فرٹیلائزر، بینکنگ اسٹاکس اور آٹو سیلز کے نمبر اچھے آنے کے بعد آٹو سیلز میں بھی سرمایہ کاروں کی دلچسپی جاری ہے۔ آج مارکیٹ میں مجموعی طور پر 477 کمپنیوں کے شیئر کا کاروبار ہوا، جس میں 268 کمپنیوں کے شیئر کی قیمتوں میں تیزی، 177 کمپنیوں کے شیئر کی قیمتوں میں کمی، جبکہ 32 کمپنیوں کے شیئر کی قیمتیں مستحکم رہیں۔ آج بازار حصص میں 34 ارب 68 کروڑ روپے کی لاگت کے 3,29,000 سودے ہوئے، جس میں 62 کروڑ سے زائد کے شیئر کا کاروبار ہوا۔ آج مارکیٹ میں سیمنٹ، کمرشل بینک، آئل اینڈ گیس، فرٹیلائزرز اور ٹیکنالوجی کی کمپنیوں کے شیئرز میں تیزی رہی۔ ضمیر عباس، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ ایس آئی ایف سی کی سہولت کاری سے پاکستان میں بلو اکانومی منصوبوں میں مقامی اور غیر ملکی سرمایہ کاری ہو رہی ہے۔ کراچی میں $10.5 ملین کی سرمایہ کاری سے ایکوا کلچر پارک بنانے کی منصوبہ بندی کر لی گئی ہے۔ محمد سجاد کی رپورٹ دیکھیے۔ ایکوا کلچر سمندری یا میٹھے پانی میں مچھلیوں، جھینگوں اور دیگر آبی حیات کی افزائش کا عمل ہے۔ پاکستان کے ساحلی پانی میں ایکوا کلچر کے ذریعے آبی حیات کی پیداوار میں اضافہ ہوگا اور بلو اکانومی کو تقویت ملے گی۔ ایکوا کلچر پارک کی سالانہ پیداوار 360 ٹن سے 1200 ٹن تک اور آمدنی $70 لاکھ تک متوقع ہے۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت ایکوا کلچر پارک کی ترقی اور سستی زمین سے نجی سرمایہ کاری کو فروغ حاصل ہوگا۔ وفاقی وزیر برائے بحری امور محمد جنید انور چودھری نے 10 دن میں ایکوا کلچر پارک کی عملیاتی رپورٹ تیار کرنے کی ہدایت کی ہے۔ بلوچستان میں ساحلی وسائل کے بھرپور استعمال کے لیے کوششیں جاری ہے۔ بلو اکانومی منصوبوں میں ایس آئی ایف سی کے مرکزی کردار کے باعث سمندری ترقی کے لیے اسٹریٹجک تعاون کا سلسلہ جاری ہے۔ محمد سجاد، پی ٹی وی نیوز، پشاور۔ ناظرین، آپریشن سندور پر ہزیمت چھپانے کے لیے بھارتی نائب صدر سے زبردستی استعفیٰ لے لیا گیا۔ تفصیل بتائیں گی نورین آصف۔ پہلگام حملہ 22 اپریل کو ہوا تھا۔ اب تک آتنکوادی پکڑے تو نہیں گئے، لیکن ہوا کیا؟ آپریشن سندور کی ناکامی پر بھارتی حکومت کو اپوزیشن کے سخت سوالات کا سامنا ہے۔ آپریشن سندور کے حقائق چھپانے کے لیے نائب صدر جگدیپ دھنکر سے زبردستی استعفیٰ لے لیا گیا۔ اپوزیشن نے آپریشن سندور پر لوک سبھا میں کھلی بحث کا مطالبہ کیا تھا۔ لوک سبھا میں خطاب میں جگدیپ دھنکر کا کہنا تھا کہ وہ لوک سبھا میں آپریشن سندور پر کھلی بحث کی اپوزیشن کو یقین دہانی کراتے ہیں۔ بھارتی نائب صدر کے اس بیان کے بعد
उनसे जबरदस्ती इस्तीफा ले लिया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक नायब सदर जगदीप धनखड़ ने अपने इस्तीफे में अपनी सेहत के मसाइल का जिक्र किया है, लेकिन जगदीप धनखड़ का इस्तीफा इस बात का सबूत है कि भारतीय हुकूमत ऑपरेशन सिंदूर के हकाइक छुपाने में मसरूफ है। भारतीय हुकूमत नाकाम पॉलिसियों की बदौलत सच सामने लाने से खौफजदा है और ऑपरेशन सिंदूर से मुतालिक हकाइक पार्लियामेंट में पेश करने के मुतालबे पर खामोशी इख्तियार किए हुए है। नायब सदर का इस्तीफा इस जानिब इशारा करता है कि हुकूमत ऐवान बाला में इस हसास मामले पर बात नहीं होने देना चाहती। जगदीप धनखड़ का मुस्ताफी होना एक मुनज़्ज़म दबाव का नतीजा है ताकि ऑपरेशन सिंदूर का सच अवाम के सामने ना आ सके। नौरीन आसिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। भारत का दारुल-हुकूमत दिल्ली मनशियात का गढ़ बन चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स में एक खातून की सरपरस्ती में मनशियात के मुनज़्ज़म नेटवर्क के होश रुबा इंकशाफात मंजर आम पर आए हैं। तफसील वकार अहमद से। भारत के बड़े शहर मनशियात और जराइम का गढ़ बन चुके हैं। भारतीय एनडीटीवी ने न्यू दिल्ली की खातून की सरपरस्ती में मनशियात के मुनज़्ज़म नेटवर्क का इंकशाफ किया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि ड्रग क्वीन कुसुम के घर से 550 पैकेट हेरोइन, 14 लाख कैश, 2 करोड़ बैंक अकाउंट और बेटियों के अकाउंट्स में भी हजारों मशकूक मनी ट्रांजैक्शन सामने आई हैं। नाअहल अदालती और तफ्तीशी निज़ाम की बदौलत 12 मुकदमात के बावजूद ड्रग क्वीन का राज इस तरह कायम है कि मुल्जिमा की जानिब से सुल्तानपुर में 4 रिहायशी यूनिट्स को मिला के 4 मंजिला इमारत की गैर कानूनी तामीर भी कर ली गई। और ये सब कुछ इसलिए कि मोदी सरकार और कानून नाफिज करने वाले इदारे मनशियात माफियाज के सामने बेबस हैं। नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के तरक्की के नारे के पीछे छुपा मनशियात का धंधा भारत की आलमी साख पर कारी ज़रब है। भारतीय शहरों में गुर्बत और बेरोजगारी को माफियाज अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं। बच्चों और खवातीन का मनशियात नेटवर्क में मुलविस होना माशरती गिरावट नहीं तो और क्या है। मोदी सरकार के विकसित भारत यानी नामनहाद तरक्की के दावे महज खोखले नारे हैं, जबकि जमीनी हकाइक मनशियात, गुर्बत और बदअमनी से जुड़े हैं। वकार अहमद, PTV न्यूज़। और यही नहीं, मोदी सरकार के चौथी बड़ी मईशत बनने के दावे भी बेनकाब हो गए। भारत में आवाम भूख और कर्ज से खुदकुशी करने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं मौजूद। आज में गुर्बत, महंगाई और पसमानदगी भारतीय अवाम का मुकद्दर बन चुकी है और मोदी सरकार के मुआशी तरक्की के झूठे दावों को भूख, कर्ज और खुदकुशियों की हकीकत ने बेनकाब कर दिया है। गुजरात में भूख और कर्ज से तंग एक खानदान की इज्तिमाई खुदकुशी ने भारत की चौथी बड़ी मईशत होने के झूठे दावों की हकीकत दुनिया के सामने अयां कर दी है। NDTV के मुताबिक 20 जुलाई को गुजरात के जिला अहमदाबाद में वालिदैन ने मुआशी तंगदस्ती के बाइस मुबैना तौर पर 2 बेटियों और एक बेटे को जहर देकर खुदकुशी कर ली। विपुल ओघेला वाहिद कफील था जो ऑटो रिक्शा चलाकर घर चला रहा था और भारी कर्ज के बोझ तले दबा हुआ था। Heart-wrenching incident of mass suicide has taken place in a room near the bus stand in Bagodra village of Ahmedabad district, in which 5 people have died. टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक भारत में 3 साल में 1866 खुदकुशियां हुई, जिनमें 19% माली दबाव और गुर्बत के बाइस थी। विपुल ओघेला की कहानी मोदी के फरेबज़दा गुजरात मॉडल की खौफनाक हकीकत को बेनकाब कर रही है। गुजरात में मोदी सरकार की 7वीं बार हुक्मरानी के बावजूद लोग गुर्बत और कर्ज के बोझ तले खुदकुशी पर मजबूर हैं। मोदी सरकार के मुआशी मॉडल की नाकामी का सबूत भारत भर में बढ़ते हुए खुदकुशी के वाक़यात हैं। मोदी सरकार का सबका साथ सबका विकास सिर्फ अडानी और अंबानी का विकास साबित हुआ है और भारतीय अवाम के लिए ना रोजगार है ना कर्ज माफी की कोई गुंजाइश। सिर्फ सरमायादारों को अरबों की छूट दी जा रही है। मौजमुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। मोदी के भारत में फौजी एहलकार भी हिंदुत्व गुंडों के निशाने पर हैं। उत्तर प्रदेश में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के एक एहलकार पर हिंदुत्व गुंडों ने बहीमाना तशद्दुद किया। तफसील वर्दा सलीम से। Another case of Kavaria violence has emerged in Uttar Pradesh. This is from Mirzapur, where Kavarias actually beat up a CRPF जवान। मोदी सरकार का हिंदुत्व नजरिया अब महज साजिशी जुनून नहीं बल्कि झूठ, नफरत और गुंडागर्दी पर मबनी सियासी एजेंडा बन चुका है और हिंदुत्व गुंडों के हाथों न सिर्फ अकलियतें बल्कि फौजी एहलकार भी गैर महफूज और बेबस हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के शहर मिर्जापुर के रेलवे स्टेशन पर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के एक एहलकार पर हिंदुत्व गुंडों ने बेईमाना तशद्दुद किया। NDTV के मुताबिक 19 जुलाई को ब्रह्मपुत्रा एक्सप्रेस का इंतजार करते हुए CRFP के एहलकार का हिंदुत्व यात्रियों से टिकट के मामले पर झगड़ा हुआ, जिसके बाद 8 से ज्यादा हिंदू यात्रियों ने एहलकार को वर्दी में ही घेर कर जमीन पर गिरा दिया और उस पर मुक्कों, थप्पड़ों और लातों की बारिश कर दी। CM Yogi supports Kavarias, says calling Kavarias miscreants is an insult to faith. Several politicians also jumped in saying that why is it that there is pool for Kavarias
but can't pay for others like Muslims? Why is it that in Uttar Pradesh, Muslims get arrested simply because they offered namaz in public, but Kawadiyas get treated like VIP? So Narendra Modi ji becoming the Prime Minister, all these Hindutva rituals are being followed in the official sanctions. These instances have triggered a massive political fight now with the opposition questioning the selectivity of a secular government. मोदी सरकार की इस तरह के वाकयात पर मुजरमाना खामोशी बदस्तूर बरकरार है। हिंदुत्व दहशतगर्दों को खुली छूट और रियासती तहफ्फुज हासिल है। मोदी का भारत अब इंसाफ नहीं, हिंदुत्व जुनून का मैदान जंग बन चुका है, जहां कानून सिर्फ अक्सरती गुंडों का गुलाम है। मोदी राज में हिंदुत्व दहशतगर्द आजाद हैं, सच बोलने वाले गद्दार, जबकि गुंडे राष्ट्रवादी हीरो बना दिए गए हैं। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, लाहौर। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि भारत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी में इजाफा कर दिया है, जिसके बायस कश्मीरी अवाम मुसलसल खौफ और दहशत के माहौल में ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। KMA सर्विस के मुताबिक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर से एक बयान में कहा कि भारतीय फौजी कश्मीरियों को हरासा करने के लिए रोज़ाना घरों पर छापे और बड़े पैमाने पर मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने मकबूजा इलाके को एक मकतलगाह में तब्दील कर दिया है, जहाँ मासूम शहरियों को हरासा करने, उनकी अमलाक पर कब्जा करने और झूठे इल्जामात के तहत गिरफ्तार करने जैसी मुनज़्ज़म कार्रवाइयाँ जारी हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत कश्मीरियों को इज्तिमाई सजा देने और आबादी का तनासुब तब्दील करने के मज़मून एजेंडे पर अमल पैरा है। जम्मू की अदालत ने एक मुतनाज़ा फैसले में 20 साल पुराने झूठे मुकदमे में 2 कश्मीरियों मोहम्मद मुमताज़ और फारूक अहमद को उम्र कैद की सजा सुनाई है। कानूनी माहिरीन ने इस फैसले पर तनकीद करते हुए इसे कश्मीरियों के साथ अदालती तासुब की एक और मिसाल करार दिया है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में डॉक्टर्स ने गैर कानूनी तौर पर नजरबंद हुर्रियत रहनुमा बिलाल सिद्दीकी की बिगड़ती हुई सेहत पर सख्त तशवीश जाहिर की है, जो गुज़श्ता 3 साल से श्रीनगर सेंट्रल जेल में नजरबंद है। बिलाल सिद्दीकी की मेडिकल रिपोर्ट्स का जायजा लेने वाले डॉक्टर्स ने खबरदार किया है कि इलाज मुआलजे की मुनासिब सहूलत की अदम फराहमी से हुर्रियत रहनुमा को जिंदगी को खतरा लाहक हो सकता है। नाज़रीन, वेदर अपडेट में खुशामदीद। NDMA के नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ने गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में मुमकिना बारिशों के बायस लैंड स्लाइडिंग अलर्ट जारी कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान में गिलगित, स्कर्दू, हुंजा, अस्तोर, द्यामिर और गांछे, जबकि कश्मीर में मुजफ्फराबाद, वादी नीलम, हवेली, बाग और पूंछ में बारिशों के बायस लैंड स्लाइडिंग का खदशा है। बालाई खैबर पख्तूनख्वा के अजला चित्राल, दीर, कोहिस्तान और मुल्हका पहाड़ी इलाकों में भी शदीद बारिशों के पेश नज़र लैंड स्लाइडिंग का इम्कान है। तर्जुमान ने कहा कि जगलोड, स्कर्दू रोड, शाहराह कराक्रम और दीगर पहाड़ी इलाकों में राबिता सड़कें मुतासर हो सकती हैं। NDMA ने तमाम इदारों को हंगामी हालात से निमटने के लिए एहलकार, मशीनरी और रेस्क्यू टीमें तैयार रखने की हिदायत की है। मकामी इंतजामिया और PDMAs को भी हंगामी सूरत हाल से निमटने और बरवक्त इक़दाम की हिदायत जारी की गई हैं। और स्कर्दू में शदीद बारिश और लैंड स्लाइडिंग में फंसे सयाहों को पाक आर्मी ने रेस्क्यू कर लिया। पाक आर्मी के फौरी रेस्क्यू ऑपरेशन को सयाहों की जानिब से खूब सराहा जा रहा है। साई में हम गए हैं तो वहाँ हम फंस गए और बहुत फ्लड आ गया और बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, जिसकी वजह से हमारी गाड़ियाँ वहीं पे रुक गई। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह पाक आर्मी ने बहुत हमें रेस्क्यू किया। जो पाक आर्मी हमारे लिए काम कर रही थी तो वो स्पीचलेस है। मतलब जो हम इनको यहाँ काम करता हुआ देख रहे हैं ना, तो मतलब हमें भरोसा है कि हम कहीं भी फंसेंगे तो आर्मी हमारी आके अल्हम्दुलिल्लाह हमें सेव कर ली। अल्हम्दुलिल्लाह पाक आर्मी वाकई जिंदाबाद। शाहराह बाबूसर और कराकरम में हालिया सैलाब के बायस फंसे सयाहों और मुसाफिरों के लिए पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सयाहों और मुसाफिरों को पाक फौज ने हेलीकॉप्टर्स के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। पाक फौज और गिलगित बल्तिस्तान स्काउट्स की टीमों की जानिब से मुतासिर अफराद तक अशिया खुरनोश और जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद भी फराहम की जा रही है। सड़कों की बहाली के लिए मशीनरी और अफरादी कुव्वत मुसलसल काम में मसरूफ है। रात से मलबा हटाने और रास्ते खोलने का अमल जारी है। बाबूसर और कराकरम हाईवे पर रुकावटें दूर की जा रही हैं। गुमशुदा अफराद की तलाश के लिए भी सर्च एंड रेस्क्यू की टीमें रवाना कर दी गईं। पाक फौज और रेस्क्यू एहलकारों की पेशा वाराना कारकर्दगी और फौरी रद्द अमल ने बड़ी इंसानी जानें बचाई हैं।
मुतालिका इदारों की जानिब से मौजूदा सूरत हाल से निमटने के लिए मरबूत इक़दामात किए जा रहे हैं। और वफाकी दारुलहुकूमत की एक निजी हाउसिंग सोसाइटी में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। बाप बेटी बारिश के बायस आने वाले सैलाबी रेले में बह गए। वाक़या सुबह 8 बजे पेश आया। रेस्क्यू ऑपरेशन 10 घंटे बाद रोक दिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन अंधेरे और पानी के बहाव की वजह से मज़ीद जारी नहीं रखा जा सकता। और रावल डैम का लेवल 1750.1 फुट पर पहुंच गया। स्पिलवेज खोल दिए गए। स्पिलवेज खोलने की वजह से कोरंग नाला में पानी के बहाव में इजाफा मुतवक्के है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं हसन तारिक पट। रावल डैम के स्पिलवेज जो हैं उनको आज सुबह जो है वो 11 बजे खोला गया, क्योंकि इसके अंदर की जो मौजूदा रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर जो बारिशों का सिलसिला है, इसकी वजह से जो इसका 275 स्क्वायर किलोमीटर का इनकैचमेंट एरिया है, उसके अंदर जो है वो ऑलमोस्ट 60 मिलीमीटर जो है वो बारिश रिकॉर्ड की, जिसके बायस रावल डैम के अंदर जो पानी की जो मैक्सिमम सतह है वो ऑलमोस्ट 1751 फीट के करीब पहुँच गई, जबकि जो मैक्सिमम अटेनेबल पॉसिबल जो वाटर लेवल है वो 1752 जो है वो फीट है। और इस चीज़ के पेश नज़र जो है वो रावल डैम के स्पिलवेज जो है वो खोलने का फैसला किया गया। स्पिलवेज को खोला गया ताकि जो पानी है उसको डिस्चार्ज करके रावल डैम के अंदर ये जो मौजूदा बारिशों का सिलसिला है, इसके अंदर मजीद जो है वो पानी स्टोर करने के लिए जो एक्स्ट्रा स्पेस जो है वो बनाई जाए। थोड़ा रावल डैम के डाटा के हवाले से बात की जाए, 275 स्क्वायर किलोमीटर का इसका जो है वो एरिया है, इसका इनकैचमेंट एरिया है, जो ऑलमोस्ट 70% जो है मरी और उसके मज़ाफ़ात में फॉल करता है, जबकि रिमेनिंग 30% रावलपिंडी इस्लामाबाद का जो एरिया है वो उसके अंदर जो है इसका इनकैचमेंट एरिया फॉल करता है। जो कोरंग नाला है, इसके अतराफ जो आबादियाँ हैं, जो बस्तियाँ हैं, वहाँ पर जो है वो सायरन बजाए गए, लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया गया। वफाकी दारुलहुकूमत इस्लामाबाद के इलाके सैदपुर में गुज़श्ता रोज़ होने वाली मूसलाधार बारिश के बाद इमदादी सरगर्मियाँ ताहाल जारी हैं। तफसीलात बता रहे हैं सैयद वज़ीर। वफाकी दारुलहुकूमत इस्लामाबाद के इलाके सिद्धपुर में गुज़श्ता रोज होने वाली तूफानी बारिश ने जल थल एक कर दिया। शदीद बारिश के बाद सिद्धपुर विलेज के बरसाती नाला बिपर पड़ा, जिससे पानी नशीबी इलाकों में दाखिल हो गया। तूफानी बारिश के बाद इंतजामिया फौरन हरकत में आई और इलाके में इमदादी सरगर्मियों का आगाज कर दिया गया। सिद्धपुर में निकासी अब के बाद बहाली का काम जारी है। इंतजामिया ने सड़कों से पानी क्लियर करके ट्रैफिक बहाल कर दी है। ताहम गैर कानूनी तामीरात को नाले के बहाव में रुकावट की वजह करार दिया जा रहा है। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान मेमन ने दीगर अफसरान की हमरा सिद्धपुर का दौरा करके सूरत हाल का जायजा लिया। डीसी इस्लामाबाद ने इलाके में मौजूदा तजव्वुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन तेज करने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि तजव्वुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन से कबल तमाम गैर कानूनी तामीरात को नोटिस दिए गए हैं। तजव्वुज़ात माफिया की जानिब से अदम ताउन के बाद ऑपरेशन शुरू किया गया। उन्होंने कहा कि आखिरी गैर कानून तामीरात मुनहदम होने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। सईद वजीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और मानसून के चौथे स्पेल के दौरान शिमाल मशरकी पंजाब में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। लाहौर में आइंदा 24 घंटे के दौरान हल्की से दरमियानी दर्जे की बारिश का इम्कान है। आसिम नज़ीर रिपोर्ट करेंगे। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर सुबह से ही सुरमई बादलों की लपेट में रहा और ठंडी हवाएं चलती रहीं। अक्सर मुकामात पर बादलों और सूरज के दरमियान आंख मचोली भी रही। लाहौर शहर में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 33 और कम से कम 25 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि हवा में नमी का तनासुब 90% है। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर और गिरदोनवा में आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश मतवक्को है। सियालकोट, नारोवाल और शरकपुर समेत पंजाब के चंद एक मुकामात पर बारिश हुई और ये सिलसिला 24 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लाहौर के अंदर क्योंकि मगरिबी हवाओं का सिलसिला इस वक्त हमारे शुमाली इलाकों से गुजर रहा है, तो जिसके ज़ेर असर कुछ मानसून के करंट्स भी जो है वो अरेबियन सी से आ रहे हैं, तो इन दोनों के मिलाप से हम उम्मीद कर रहे हैं कि आइंदा जो 24 घंटे हैं इसमें जो हमारे पहाड़ी इलाके जो लाहौर के जो कहने के साथ जो जुड़ते हुए जो है पहाड़ी इलाके उनमें और साथ मिलकर लाहौर में भी जो है वो हल्के से दरमियानी बारिशें जो है वो मुतवक्के हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर मजीद बारिशों की सूरत में पंजाब भर में जरूरी इकदाम किए गए हैं। शहरों के नशेबी इलाकों से पानी के निकास और किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए वासा जिले इंतजामिया और मुतलका इदारों को हाई अलर्ट किया गया है। सूबाई वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन
की मौजूदा सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर DG वासा पंजाब और MD वासा रावलपिंडी को नाला लई की सूरत हाल मॉनिटर करने की हिदायत की है। जिला शेखुपुरा की तहसील शरकपुर में दरियाए रावी में मुमकिन सैलाब के खदशे के पेश नजर दरिया के किनारे आबाद मकीनों को इनखला की हिदायत कर दी गई है। ननकाना साहब में गुजरने वाले नाला डेग में तुगयानी के बायस पानी कई मुकामात पर करीबी खेतों और आबादियों में दाखिल हो गया है। मानसून के चौथे स्पेल के दौरान होने वाली बारिशों से पंजाब के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल का इम्कान नहीं। दरियाए चनाब में खानकी के मुकाम पर हल्के से दरमियाने दर्जे का सैलाब है, जबकि दरियाए सिंध में तरबेला के मुकाम पर पानी के बहाव में मामूली इजाफा देखने में आ रहा है। आसिम नजीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, लाहौर। नाज़रीन, मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र मोहतात रहें, महफूज रहें। कुछ और खबरें शामिल करेंगे। पंजाब के गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान ने पंजाब में शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र अपना चीन का सरकारी दौरा मनसूख कर दिया। इस मौके पर गवर्नर ने कहा कि उन्होंने तमाम तर मसरूफियात मौसमी हालात के पेश नज़र ख़त्म कर दी हैं। सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि कुदरती आफात का मुकाबला नहीं किया जा सकता, हम इससे बचाव के लिए मौसर इकदाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा सैलाबी सूरत हाल में तमाम सियासी जमातों को सियासत से बालातर होकर मुतासरीन के साथ खड़ा होना चाहिए। खेलों की खबरों में खुश आमदीद और सबसे पहले बात करते हैं। बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज जीत ली। दूसरे मैच में बांग्लादेश ने 8 रन से कामयाबी हासिल करके सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल की। तफसील जानते हैं ज़िशान कयूम से। इनोवेशन, ट्रबल एंड गॉन। शेरे बंगला स्टेडियम मीरपुर ढाका में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। बांग्लादेश की टीम 20 ओवर्स में 133 रन बनाकर आउट हो गई। बांग्लादेश के सिर्फ 3 बल्लेबाज डबल फिगर्स तक पहुंच पाए। परवेज हुसैन 13 रन बनाकर कैच आउट हुए। And straight into the hands. Would you believe it? जाकिर अली ने निस्फ सेंचुरी स्कोर की और 55 रन बनाकर विकेट खो बैठे। मेहदी हसन ने 33 रन बनाए। This time it goes down the wicket. Bowlers. That's high in the air. They should go all the way. पाकिस्तान की जानिब से डेब्यू करने वाले अहमद दानियाल, सलमान मिर्जा और अब्बास आफरीदी ने 2-2 विकेटें हासिल की। फहीम अशरफ और मोहम्मद नवाज के हिस्से में 1-1 विकेट आई। Goes aerial. Over long on. What a way to bring up his 50. What a knock he has played so far. A brilliant 50 by... बॉलर्स की मेहनत पर बल्लेबाजों ने पानी फेर दिया। 133 रन के जवाब में पाकिस्तानी टीम 19.2 ओवर्स में 125 रन पर हिम्मत हार गई। इब्तदाई 6 में से 3 बल्लेबाज तो 0 पर पवेलियन लौट गए। फखर जमान 8, साइम अयूब 1 और सलमान अली आगा 9 रन बना सके। मोहम्मद हारिस, हसन नवाज और मोहम्मद नवाज 0 पर विकेट खो बैठे। खुशदिल शाह ने 13 रन बनाए। मुतादिद चांसेस मिलने के बाद फहीम अशरफ ने 51 रन की इनिंग्स खेली, ताहम वो मैच फिनिश न कर पाए। Gets a hold of that and puts it away to the boundary. अब्बास अफरीदी 19 और अहमद दानियाल ने 17 रन स्कोर किए। बांग्लादेश की जानिब से शरीफुल इस्लाम ने 3 विकेटें हासिल की। मेहदी हसन और तंजीम हसन के हिस्से में 2-2 विकेटें आईं। सीरीज का तीसरा मैच जुमेरात को ढाका में ही खेला जाएगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सीरीज PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाई जा रही है। ज़िशान कयूम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। Oh, he's middled that. Has he? No. ढाका में एयरफोर्स के तरबियती तैयारे के हादसे में जाँ बहक और ज़ख्मी होने वाले अफराद के लिए बांग्लादेश में यौम सोग मनाया गया। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरे T20 के मौके पर शेर बांग्लादेश नेशनल स्टेडियम में बांग्लादेशी परचम सरनगू रहा। इस मौके पर हादसे के मुतासरीन के लिए दुआएं की गई। मैच से कबल 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। दोनों टीमों के खिलाड़ियों और टीम ऑफिशल्स ने सयाह पट्टी बांध कर मैच में शिरकत की। बहुत शुक्रिया शफीक आपका। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। हमें हमारी टीम की हमरा इजाज़त दीजिए। कुछ ही देर में आपको ज्वाइन करेंगे हेडलाइंस के साथ। आप हमारे साथ रहे, आपका शुक्रिया।